हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज है 2 सितंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यू आयुष इंस्टीट्यूट्स विल बी ओपन इन द नेक्स्ट 5 years एज अनाउंस्ड बाय प्रताप राव जाधव। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, प्रताप राव जाधव द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अगले 5 वर्षों में कितने नए आयुष संस्थान खोले जाएंगे। आपके ऑप्शंस हैं 5, 7, 8 या फिर 10। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले 5 वर्षों में कुल 10 आयुष संस्थान खोले जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, यूनियन मिनिस्टर प्रताप राव जाधव announced the opening of 10 new Ayush institutes over the next 5 years to promote traditional Indian medicine systems like Ayurveda. So during a visit to All India Institute of Ayurveda, Jadhav emphasized the government's commitment to making Ayurveda accessible to every household, aligning with the Prime Minister's vision. And he noted the global shift in the perception towards yoga and Ayurveda with increasing acceptance and highlighted the historical challenges faced by traditional medicine during colonial rule. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India signed a memorandum of understanding with which country to enhance cooperation in public sector? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आपके ऑप्शंस हैं यूएई, सऊदी अरब, कतर या फिर ओमान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये समझौता हुआ है भारत और सऊदी अरब के मध्य। आप यहाँ देख सकते हैं, India and Saudi Arab signed a landmark memorandum of understanding on public sector auditing in Riyadh, and the agreement was signed by Girish Chandra Murmu, जो कि CAG हैं भारत के, and Dr. Hussain Al Angari, जो कि प्रेसिडेंट हैं सऊदी जनरल कोर्ट ऑफ ऑडिट के। इसके साथ ही डॉक्टर सुहेल खान भी इस एग्रीमेंट के दौरान वहां मौजूद रहे थे, जो कि हैं इंडियन एम्बेसडर टू सऊदी अरब। दिस MOU focuses on enhancing collaboration and expertise exchange in public sector auditing, including joint training programs on financial performance and compliance audits, and also sharing audits manual and methodology. The agreement also covers cooperation in international forums and address Saudi Arab's shift from cash to accrual accounting and professional capacity building initiatives. आप ध्यान रखेंगे, इंडिया और सऊदी अरब के मध्य MOU साइन हुआ है इन पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग को लेकर के। इसके साथ ही सऊदी अरब की बात करें तो उसको ऑफिशियली किंगडम ऑफ सऊदी अरब के नाम से जाना जाता है, और ये वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The term doubtful voter or D-voter recently seen in the news has been primarily used in which northeastern state? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द संदिग्ध मतदाता या डी वोटर मुख्य रूप से किस पूर्वोत्तर राज्य में इस्तेमाल किया गया। आपके ऑप्शंस हैं असम, नागालैंड, मणिपुर या फिर मिजोरम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये यूज किया गया है असम राज्य में। आप यहाँ देख सकते हैं, असम हैज आइडेंटिफाइड अराउंड 1.2 लाख पीपल एज डी वोटर्स with 41,583 declared as foreigners.
The devoter concept is specific to Assam, where migration and citizenship are major political issues. So it was introduced in Assam in 1997, and devoters are those who cannot prove their Indian nationality. People with questionable or disputed citizenship were marked as devoters during the National Register of Citizens preparation. So the term doubtful voter is not defined in the Citizenship Act of 1955 or the Citizenship Rule of 2003. The Citizenship Rules of 2003 outlines the process for creating the National Population Register and National Register of Indian Citizens. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Indian Army launched a project to support veterans and their families. What is the name of this project? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार की सहायता के लिए एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं प्रोजेक्ट नमन, प्रोजेक्ट आशीर्वाद, प्रोजेक्ट रिपीट या फिर प्रोजेक्ट रिवाइव। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इंडियन आर्मी ने जो परियोजना शुरू की है इसका नाम है प्रोजेक्ट नमन। आप यहाँ देख सकते हैं, The Indian Army has launched the first phase of Project Naman. It will provide dedicated support and services to defense pensioners, veterans, and their families. So, under the first phase of Project Naman, 14 common service centers have been established at different locations, और ये establish किए जाएंगे न्यू दिल्ली, जालंधर, लेह, देहरादून, लखनऊ, जोधपुर, बेंगलुरु, गोरखपुर, झांसी, सिकंदराबाद, सुगौर, गुंटूर, अहमदाबाद और बेंगलुरु में। आप ध्यान रखेंगे प्रोजेक्ट नमन को शुरू किया है इंडियन आर्मी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which ministry recently inaugurated the ASSOCHAM Environment and Carbon Conference in New Delhi? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस मंत्रालय ने हाल ही में नई दिल्ली में एसोचैम पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज या फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। आप यहाँ देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कीर्तिवर्धन सिंह इनॉग्रेटेड द एसोचैम इन्वायरमेंट एंड कार्बन कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। और इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा है फोस्टरिंग अ कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम फॉर अचीविंग नेट जीरो बाय 2070। So the government aims to achieve net zero emission by 2070 and fulfill the Viksit Bharat 2047 vision. So he highlighted the success of Jal Jeevan Mission in solving water crisis for rural farmers. The government support industries and stakeholders in addressing environmental issues, and the conference also includes representatives from industries, research and environmental organizations. तो आप ध्यान रखेंगे एसोचैम इन्वायरमेंट एंड कार्बन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, और इसका थीम रहा है फोस्टरिंग अ कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम फॉर अचीविंग नेट जीरो बाय 2070। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वर्धवन पोर्ट। यहाँ पर वर्धमान बंदरगाह से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज सेट टू बिकम इंडियाज लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट एंड विल बी ऑपरेशनल बाय 2030। एंड सेकेंड, इट इज अ ग्रीनफील्ड पोर्ट लोकेटेड इन पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है
आपको बताना है वाधवन पोर्ट से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप यहाँ देख सकते हैं Prime Minister Narendra Modi launched India's largest deep water port, Vadhavan, to generate 12 lakh job opportunities in Maharashtra. So, scheduled to be operational by 2030, the port will feature 9 1,000-meter long container terminals and a variety of specialized berths. So, it will be operated under the Vadhavan Port Project Limited and Jawaharlal Nehru Port Authority. So this port will serve as India's new gateway to global trade with a cumulative capacity of 298 million metric tons per annum. और आपने देखा कि ये स्थित है पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which organization won the Biju Patnaik Sports Award for 2023 for its contribution to promoting sports? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है खेलों को बढ़ावा देने में योगदान के लिए किस संगठन ने 2023 का बीजू पटनायक खेल पुरस्कार जीता है। आपके ऑप्शंस हैं ओएनजीसी, सेल, गेल या फिर नालको। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये अवार्ड जीता है नालको ने। आप यहाँ देख सकते हैं National Aluminium Company Limited received the prestigious Biju Patnaik Sports Award for 2023 for its significant contribution to the promotion of sports and games. So Sridhar Patra, CMD of NALCO, accepted the award from श्री मोहन चरण मांझी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं ओडिशा के एट अ स्पेशल फंक्शन ऑन नेशनल स्पोर्ट्स डे एट लोक सेवा भवन इन भुवनेश्वर। सो नाल्को की बात करें तो ये एक नवरत्न कंपनी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड इट हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर स्पोर्ट्स सपोर्टिंग एथलीट्स इवेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सो आपने देखा कि नाल्को इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।